ضلع شوپیاں کے گند علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں جیش کے سرکردہ کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب آج صبح فورسز نے گند علاقے میں میوہ باغات کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی شروع کی، جس دوران ایک میوہ باغ میں موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ کافی دیر تک جاری رہنے والی اس انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے جن کا تعلق جیش تنظیم سے تھا۔ ہلاک شدہ ملیٹنٹوں کی شناخت امشی پورہ شوپیاں کے شاہجہاں احمد میر اور راول پورہ شوپیاں کے ریاض احمد کے بطور ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے فورسز نے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ Was open and the forces tried to engage the terrorist in the best possible way. What we are getting to know from the field that 2 terrorists have been killed in this encounter. Arms and ammunition have been recovered. Affiliation of the terrorist from the material recovered from the spot and whatever inputs we have, they were from Jaish-e-Mohammed. Police has registered a case and investigation is going on. قصبہ شوپیاں میں آج اس وقت حالات کشیدہ ہوئے جب گند شوپیاں انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹوں کے مارے جانے کی خبر پھیل گئی۔ قصبہ شوپیاں کے مختلف مقامات پر پتھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ فورسز نے پتھراؤ کرنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور پیلٹ کا استعمال کیا، جس سے کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ قصبہ شوپیاں میں آج ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی کافی متاثر رہی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک اور متنازع بیان دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کا موازنہ ہٹلر سے کیا ہے۔ فاروق عبداللہ نے سری نگر کے شہر خاص میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی طرح ہٹلر بھی ہر کسی کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ فاروق عبداللہ نے دفعہ 370 کی منسوخی کے تعلق سے بی جے پی صدر امت شاہ کے بیان پر شدید تنقید کی۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم بھی چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہیں۔ این سی صدر نے پلوامہ حملے کی تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ ووٹ بینک سیاست کے لیے یہ حملہ کرایا گیا۔ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کس طرح ہے کہ گاڑی ایک قانون بھر کے اس میں وہ پکڑی نہیں ہے جبکہ محبت تھی اور بنیاد پر ایک گاڑی اس کو پکڑیں گے مگر وہ سب پوری اسپتال لگایا دوانے نے کہا کیا بالا کو بالا کو بالا کو بالا بالا کو دھمکی کجوان پانچو تیرا تصدر بتاؤ یار شام کو سکھا بتا جاتے اردو میں ڈاکٹر صاحب اردو ساکی صاحب این سی کی جانب سے گاندربل کے کنگن میں کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وادی میں نئی سیاسی پارٹیوں کے وجود میں آنے کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہاں کی بڑی علاقائی پارٹیوں کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے خطاب کے دوران این سی ورکران پر زور دیا کہ وہ سازش کے تحت تشکیل دی گئی ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے باخبر رہیں جو ہمارے وقار اور اتحاد کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر سابق ایم ایل اے میاں الطاف بھی موجود تھے۔ It's not what I see today. India is supposed to be democratic. اب دیکھیے
बताया मोबाइल क्यों सही है? यूपी का आदमी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, वो जम्मू से क्यों नहीं लड़ रहा है, उधमपुर से क्यों नहीं लड़ रहा है, यहाँ क्यों लड़ रहा है? ये तो क्वेश्चन ऑफ लीगल. There is a thing interest in behind this, a very serious thing behind this. ये हमारे तशक्कुस को खत्म करना चाहते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी इनकी जमात इख्तिदार से दूर हुई है तब दफ़ा 370 और जम्मू कश्मीर की खास पोजीशन को खत्म करने की कोशिश तेज हुई है. अनंतनाग में पार्लिमानी उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे से खिताब के बाद उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया. अमित शाह के हालिया बयान की नुक्ताचीनी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी की वजह से पूरे मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ गई है और इन्हें उम्मीद है कि लोगों का फैसला मुल्क की सालमियत और मजहबी भाईचारे के हक में होगा. इस मौके पर एनसी सूबाई सदर नासिर असलम वानी समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे. अपने खिताब में लीडरान ने कारकुनों को पार्टी उम्मीदवार हसनैन मसूदी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की तलकीन की. 370 को लेके और 35A को लेके बीजेपी के तरफ से हमला किया जा रहा है. हम लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार से बाहर रही है, इन ताकतों ने उस सूरत हाल का फ़ायदा लिया है और जम्मू कश्मीर को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा. बीजेपी के तरफ से तो हमेशा मुसलमानों को उन्होंने हमेशा निशाना बनाया हुआ है. इसीलिए तो हमने उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा और मुफ्ती साहब से कहा था कि बीजेपी को इस रियासत में मत लाएं. हिंदुस्तान जो है एक सेक्युलर मुल्क रहा है. हिंदुस्तान के आइन में ये बात दर्ज है कि हर मजहब को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा. हम चाहते हैं कि 23 मई के बाद ऐसी हुकूमत बने जो हमारे आइन को बचाने का काम करे. उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि इलेक्शन बाइकाट से उनकी जमात को कोई फायदा हासिल नहीं होगा, जबकि पथराव के मामलात में मुलविस नौजवानों के केसों को खत्म करना उनके इंतखाबी मंशूर में दर्ज है. कोशिश ये रहेगी कि बॉयकॉट का असर कम से कम हो, क्योंकि जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे उतना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को जो है फ़ायदा होगा. हमारी उम्मीद है कि तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी. मुझे कैंपेन आगे चलाने दीजिए. हर तकरीर में हम अलग अलग बात करते हैं. जो आपने स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ केस की बात की, इसका भी हमने नॉर्थ कश्मीर में कैंपेन के दौरान लोगों को यकीन दिलाया है कि एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत बनेगी PSA का कानून जो है हम हटा देंगे, और दूसरा स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ जो केस है उन केस को वापस लेने का काम शुरू. साबिक वज़ीर-ए-आला व PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करे उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए. महबूबा ने कहा कि बडगाम जिले में 2 लीडर PDP से अलग हो गए, तहम PDP वर्करान पुरजोश हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी वर्करान उनके साथ 20 साल से खड़े हैं. महबूबा मुफ्ती खान साहब बडगाम में एक अवामी रैली से खिताब कर रही थी. उनके हमरा पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन भी मौजूद थे. देखिए, दोनों जगह जो मैं देख रही हूँ कि जो हमारे लीडर चले गए हैं, भाग गए हैं, उसके बावजूद आपने लोगों का जोश देखा, आपने लोगों का वलवला देखा. लीडर भाग गए हैं, में लोग जो हैं, कारकुन जो है वो PDP के साथ वहीं खड़ा है जहां आज से 20 साल पहले खड़ा था. नहीं, जिन्होंने भी गलत किया हो, जिन्होंने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है धज्जियां उड़ाई हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला बडगाम के चाडोरा में भी एक अवामी रैली से खिताब किया और उनकी पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार के हक में वो लोगों से वोट देने की अपील की. कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने डोडा का दौरा किया. उन्होंने इस मौके पर लोगों से पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को कामयाब बनाने की अपील की. आजाद ने उम्मीद जताई कि इन्हें लोगों की अच्छी हिमायत मिलेगी. इस मौके पर आजाद ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया है. ताहम चुनाव वैली में लोगों ने प्यार व भाईचारे को हमेशा कायम रखा है. मुझे बड़ी खुशी है कि जो नफरत का बीज पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की तरफ से बोया जा रहा है उसका असर हमारे यहाँ चुनाव वैली में नहीं है. यहाँ लोग हमारे गांव में अभी भी उतने ही प्यार और मोहब्बत से रहते हैं जैसे वो हमेशा रहते रहे हैं. और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा के लिए कायम रहे और हम इसी तरह से आगे.
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के रियासती सदर व अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जनूबी कश्मीर में आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके इस नशिस्त पर काबिज होगी। मीर ने इन बातों का इजहार अनंतनाग हल्के इंतखाब में अपने रोड शो के दौरान किया। इस रोड शो के दौरान जी मीर ने अपने हामियों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों से कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने 2014 से लेकर जब तक वो सरकार में थे, जो उनने यहाँ के लोगों के दिल तोड़े, वादा खिलाफी की, बेट्रेल किया और हालात यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की माँ बहन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पैदा किए हैं, उसका उनको रिजल्ट घर बैठे पता है। और साउथ कश्मीर के लोग बहुत सियासी तौर होशियार लोग हैं और वो समझते हैं कि हमने आज क्या फैसला करना है। और महबूबा मुफ्ती को इसीलिए किसी भी जगह जाने की कोई स्कोप नहीं दिख रही। उनके अपने लोग, उनके अपने जो ओहदेदार हैं बड़े बड़े, वो नहीं अभी कहीं निकल पा रहे हैं। जिला रामबन में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग में शिरकत की। बीजेपी दफ्तर रामबन में मुनक्किद मीटिंग में बीजेपी लीडरान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। राम माधव ने वर्करान से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले 18 तारीख को इंतखाबात के दिन उधमपुर डोडा हल्के इंतखाब से बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट डालकर मोदी हुकूमत को मजबूत बनाने में अपना रोल अदा करें। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू उधमपुर हल्के से बीजेपी की जीत यकीनी है। कौमी शाहराह पर पाबंदी को लेकर कहा कि यह सिक्योरिटी वजूहात पर लिया गया इंतजामिया का फैसला है और अपोजिशन सिर्फ इल्जाम लगाने में मसरूफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने उन्हें सिरे से ही खारिज कर दिया है। जम्मू और उधमपुर दोनों सीटों पर हमारे बीजेपी के जो सिटिंग एमपीज दोनों लड़ रहे हैं। पहले से 14 से ज्यादा बहुमत से इस बार चुनाव में जीत हासिल करेंगे। प्रशासन का निर्णय है, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने निर्णय किया है, उस पर जो भी चिंताएं हैं वो प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। अपोजिशन के लिए अब इल्जाम लगाने के सिवाय कुछ बचा नहीं है। जम्मू में अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं बचा है इस राज्य के विकास में। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से खान साहब हल्के के हर्द पांजू इलाके में एक अवामी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी और पीसी के नायब सदर अब्दुल गनी वकील मौजूद थे। लीडरान ने लोगों से अपील की कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने में उनका साथ दें और श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी हल्के के लिए उनके उम्मीदवार इरफान अंसारी को कामयाब बनाएं। खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने हरद पंजू खान साहब में एक इलेक्शन रैली से खिताब किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ सेब के निशान पर बटन दबाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी उम्मीदवार को कामयाब करें। साहब और महबूबा जी का एक बयान आया कि जब तक 35A का फैसला नहीं होता हम इलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। 35A का भी फैसला हुआ नहीं और दोनों पार्टीज इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो गई हैं। ये झूठ है और कुछ नहीं है। इनको 35A या आर्टिकल मानते लोगों को धोखा देने के लिए हमेशा धोखा दिया गया, 50 साल से धोखा दिया, आज भी धोखा दिया जा रहा है। बांडीपुरा के छिटे मांडी छलीवन इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाक़या पेश आया है, जिसमें बाप ने मुबैना तौर पर अपनी बेटी की इस्मत तार तार की है, जबकि लड़की ने बाद में जहर खाकर अपनी जान दे दी है। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके दरिंदा सिफत बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है रिपोर्ट। बाप और बेटी का रिश्ता किस कदर मुकद्दस है, इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस बात से भी किसी को इनकार नहीं हो सकता कि लड़के के मुकाबले में लड़की अपने बाप के ज्यादा करीब होती है और दोनों के दरमियान लगाव और मोहब्बत का ये बंधन मरते दम तक कायम रहता है। लेकिन बांडीपुरा के चिट्ठे बांडे छलीवन इलाके में जो कुछ हुआ, उस वाकये को कैमरे में कैद करने या उस पर कुछ लिखने से इंसान पर लर्जा तारी होता है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में एक शख्स काफी अरसे से मुबैना तौर पर अपनी जवान और कुंवारी बेटी की इस्मत तार तार करता रहा और जब इस दरिंदा सिफत ने अपनी एक और बेटी की इस्मत लूटने की कोशिश की तो दूसरी बेटी ने शोर मचाकर लोगों को अपने बाप के काले करतूतों से वाकिफ कराया और इसके बाद ही वो लड़की, जो कि काफी अरसे तक बाप की हवस का शिकार होती रही, ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लड़की के रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा किया है।
जनाब मोदी साहब से गुजारिश है कि इस गलत इंसान को फांसी दे दो और फांसी के अलावा मुंह देने के काबिल नहीं है। गाँव में जाए तो कैसे जाए, कहाँ जाए, हमारा डूब रहा है, मस्जिद में नहीं जाने के काबिल। और मेरी भी 5 बेटियां हैं, बराए मेहरबानी इसको इंसाफ दिया है, इसका गौर किया जाए। देखिए, कल शाम को एक डेड बॉडी हमें मौसूल हुई। अरगम चिचेपांडी जो थाना है उनके पुलिस ऑफिसर्स लाए हमारे पास। सुबह उसको हमने पोस्टमार्टम किया इन ब्रॉड डे लाइट, और जो भी एलिगेशन उसमें उसके मुताबिक हमने उसका पोस्टमार्टम किया, जनरल पोस्टमार्टम किया और गायनी का भी। एक लेडी डॉक्टर ने भी हमारे लिए एग्जामिन किया और उसके बाद उसके सैंपल लिए और जनरल पोस्टमार्टम किया। इस वक्त कबल वक्त होगा ये कहना कि क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, और इंशाल्लाह जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद विल शेयर विद। उधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने महलूक लड़की के रिश्तेदारों की तरफ से तहरीरी शिकायत के बाद इस्मत दरी, कत्ल और दूसरे दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है और मुल्जिम बाप को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़ये के बाद मकामी लोगों में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस वाक़ये ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब भी इंसान अशरफुल मखलूकात कहने के लायक है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। कुपवाड़ा में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही का एक वाकया पेश आया, जिसकी वजह से दर्द ज़ख्म में मुब्तला एक खातून को अस्पताल के बजाय सोमो गाड़ी में बच्चे को जन्म देना पड़ा। बदकिस्मती से बच्चे की मौत हो गई। चीफ मेडिकल अफसर ने इंक्वायरी के अहकाम दिए हैं। पेश कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से सरकली कुपवाड़ा की फातिमा नामी दर्द ज़हम में मुब्तला खातून की गोद उस वक्त उजड़ गई जब ये खातून दूर उफ्तादा इलाके से कलारूस अस्पताल पहुंची। इन अफराद के मुताबिक डॉक्टर्स ने इनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और मामूली तिब्बी जांच के बाद खातून को कुपवाड़ा रेफर कर दिया गया। अलमिया ये कि रेफर की गई खातून को अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की गई, जिसके बायस ये अफराद कुपवाड़ा की तरफ जाने वाली एक सूमो गाड़ी में सवार हुए। तहम आधे किलोमीटर की दूरी पर ही फातिमा के दर्द में इजाफा हो गया और उसने सूमो गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। फौरी तौर पर जच्चा बच्चा को दोबारा कलारूस अस्पताल पहुंचाया गया और जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मुर्दा करार दे दिया। घर वालों का कहना यही है कि नौजायदा को बरवक्त इलाज न मिलने के सबब मौत वाक़ई हो गई और सितम ज़रीफ़ी ये कि इस खातून को दोबारा उसी निजी गाड़ी में कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया और इस मर्तबा भी अस्पताल की गाड़ी तक फराहम नहीं की गई। इस वाक़े से हालिया दिनों पेश आए ललदेद वाक़े की याद ताज़ा हो गई। डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से एक और माँ की गोद उजड़ गई। मुझे घर वाली बीमार थी, मैं लेकर कलारूस में आया। वहाँ तो डॉक्टर के पास पहुँचा, डॉक्टर बोलने लगा कि इसको कुपवाड़ा ले जाओ, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला इसको कुछ वरम भी है, इसको बच्चे की बीमारी भी है, तो देखो इसको दर्द हो रहे हैं कुछ। उन्होंने वो कुछ नहीं, उसने मेरे साथ कोई बात उसने की नहीं। मैंने बोला कोई गाड़ी दे दो, कोई गाड़ी अगर मिलती है। बोला गाड़ी कहाँ कोई नहीं मिले, रोड में गाड़ी ले जाओ, उधर गाड़ी मिलेगी। इन्होंने सवारी 2 उतार दी ड्राइवर साहब ने, तो चढ़ाया हमें उधर डिक्की में लेकर। मैं आया थोड़ा आगे आधे किलोमीटर पहुंचा तो मुझे मतलब वो डिलीवरी हो गई उसकी। फिर वहाँ से वापस गए हम तो कलारूस में हमें फिर अस्पताल में हम कलारूस में पहुंचे। हमें वहाँ किसी ने नहीं पूछा कि ये जानवर आगे क्या आदमी है क्या नहीं, मर रहे हैं क्या है, कुछ नहीं। ड्राइवर साहब ने कुछ बोला, ड्राइवर को भी बहुत डांटा बेइज्जती किया। हमें इंसाफ होना चाहिए कि हम गरीब लोग के हमारे कोई पूछता ही नहीं है, वहाँ पर कोई पूछ पाछ है ही नहीं है। अब उसको कार्रवाई करो, क्या होना चाहिए, इंसाफ चाहिए, कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। आपको जाओ, आपको क्या करना है आप करो। हमारे खिलाफ हमारी गलती कोई नहीं। हमने उससे पूछा आपकी गलती है, अगर इसको यहाँ से आपने निकाला 5 मिनट के बाद इसने रोड पर जन्म लिया, आपकी गलती है क्यों नहीं है। उसने बोला नहीं, आपको जो करना है जाओ करो हमारे खिलाफ। पहले बोला इससे पहले ये कभी अस्पताल में आई ही नहीं है। इसने बोला नहीं ये आई है अस्पताल में, मगर उसको ये नहीं बोलना था उस टाइम कि ये क्यों नहीं आई, उसको इसकी जान बचानी थी। उसने उसके बदले इसको बोला कि ये अभी अस्पताल में आई नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पर, अब जाओ आपको क्या करना है क्या करो। तो हम इंसाफ चाहते हैं। हम आधा घंटा वहाँ डॉक्टर के खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, आधे घंटे तक वहां वेट करते रहे, कोई मजिस्ट्रेट कोई डॉक्टर वहां पे ऐसा कोई काम करने कार्रवाई करने के लिए नहीं आया। तो वहां एक नर्स आई, उसने बच्चा उठा के बच्चा ले गया हॉस्पिटल में अंदर और इसको उतारा नहीं। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब से कि इसको एम्बुलेंस दो, इसको यहाँ से कुपवारा रेफर करो, कहाँ ले जाना है ले जाओ, ये आपका काम है, ये हॉस्पिटल इसीलिए है। लेकिन डायरेक्टर ने कोई एम्बुलेंस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। मीडिया की आवाज से सबको बोलना चाहता हूँ कि खुदारा गरीबों के साथ ऐसा मत करें। उधर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा ने न्यूज 18 को फोन पर जानकारी दी कि इस वाक़े की जांच के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है और टीम को 2 रोज के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्टर या नीम तिब्बी अमला इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर कलारूस में तैनात डॉक्टर ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने मरीजा की जांच की थी और उन्हें एम्बुलेंस भी फराहम की, ताहम इन लोगों ने एम्बुलेंस में जाने से ही इनकार कर दिया। ये जनरलाइज एडीमा था पेशेंट को, फर्दर मैनेजमेंट के लिए इसको एसजीएच कुपवाड़ा भेजा गया था। डॉक्टर बिलाल ने इनको रेफ़र किया था वहाँ पे। तो रास्ते में इनकी जो थी इनकी वो डिलीवरी हुई है और अनफॉर्चुनेटली जो बेबी है उसकी डेथ हुई है। इसके मैंने एक इंक्वायरी फुल फ्लेज इंक्वायरी टीम बैठा दी है। इनको मैंने ऑर्डर्स दिए हैं कि कल शाम तक ये मुझे अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और जिस एम्प्लॉय की भी कोताही होगी स्टर्न एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। मैंने इसको ऊपर एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से किया, फिर ड्यू टू सम उसकी जो कॉम्प्लिकेशन थी इसकी वजह से मुझे इसको रेफ़र करना पड़ा। मेरे पास आए, मैंने उसके एग्जामिनेशन की, इसके बाद भी मेरे पेशेंट यहाँ पे देखे। मुझे यहाँ पर ड्यूटी है, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से केयर करता हूँ। फिर भी हमने इसको बोला कि हम आपको एम्बुलेंस दे देंगे, हम आपको फिर भी कुपवाड़ा जाना, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मैनेजेबल नहीं है, आपको कुपवाड़ा जाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसी सोमों में जाएंगे। कुपवाड़ा जिले में महकमे सेहत पर आज उस वक्त एक बार फिर सवालिया निशान लग गया जब सरकुली कलारूस से आई दर्द जख्म में मुब्तला खातून को कलारूस अस्पताल में दाखिला न मिला और न ही वहां इसे एम्बुलेंस मिली। वजह है कि इसी तरह का एक वाकया इससे पहले मूरी कलारूस का जो ललदत में वाकया पेश आया था उससे दाखिला नहीं मिला था और आज एक बार फिर ये वाकया फिर से दोहराने लगा। ये लोग चाहते हैं, लवाकिन चाहते हैं कि इस वाकये की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए और इस हादसे में मुलविस डॉक्टर के खिलाफ करारी वाकई सजा होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात दोबारा रोनमा न हो। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अनंतनाग सीट से इंतखाब लड़ने वाले यूपी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को बीजेपी और आरएसएस ने उतारा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत की डेमोग्राफी तब्दील करने की साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि यूपी के रिहायशी शम्स ख्वाजा अनंतनाग हल्के से इंतखाबी मैदान में है। जो यहाँ से खड़ा हुआ है ये डेमोक्रेसी है, अपना लगाए जो करना चाहता है, मगर लोग उसको पहचानेंगे नहीं। ये मेरे ख्याल से प्लांटेड आदमी है जिसको प्लांट किया गया है यहाँ पे आगे के लिए। याद रखना, ये आगे के लिए हमारी अक्सरियत को खत्म करना चाहते हैं। अंडर स्कीम बाय बीजेपी एंड आरएसएस कभी हुआ है यहाँ पे? कभी नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज बीन डन बाय दीज पीपल हु वांट टू चेंज आवर डेमोग्राफी। थैंक यू। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बीजेपी की जानिब से इंतखाबी अमल के दौरान मुबैना आर्मी तंजीम का नाम इस्तेमाल करने के मामले पर कहा कि पार्टी दफ्तर को आर्मी हुक्काम की जानिब से कोई खत मौसूल नहीं हुआ। अशोक कौल ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है और बीजेपी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा आर्मी और उनसे जुड़े इदारों का एहतराम करते हैं। वहीं पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर शो कॉज नोटिस मामले पर कौल ने कहा कि उन्होंने बहुत कम वक्त के लिए श्रीनगर में अवामी रैली का इनेकाद किया। अशोक कौल बडगाम में न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। ये समय इस प्रकार के जिमिक्स, इस प्रकार की चीज़ों को प्रचारित करने के लिए इस प्रकार की उन्होंने ये बात चलाई है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई चिट्ठी प्रेसिडेंट ऑफिस के पास पहुंची ही नहीं है, इसलिए ये सारा गलत है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी सेना का सम्मान करते हैं, सेना के तीनों विंगों का सम्मान करते हैं। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सेना का दुरुपयोग नहीं करती। किसी भी कीमत पर ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए। जो नियम इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं उन नियमों पर हमको खरा उतरना चाहिए। ये उनकी चूक मैं मानता हूं कि वो रही है।
वो जवाब उसका दे देंगे। और उन्होंने एप्लीकेशन समय पर दी थी, लेकिन वो इतना समय नहीं था जिस समय पर उनको वो परमिशन मिल सकती थी। लेकिन कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को चुनावी रैली से खिताब करेंगे। इस हवाले से तैयारियां जोरों पर हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी वर्करान काफी पुरजोश हैं। इस हवाले से डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 से बात की। पीएम साहब का विजिट के मुताबिक जो ज़रूरतें होती हैं सिक्योरिटी की, उसी मुताबिक सारे के सारे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आपका स्टेज वगैरह तैयार हो रही है, पंडाल आगे लग गया है, बाकी इंतजाम हो रहे हैं। सिक्योरिटी के आगे पीछे सारी कवरेज हो गई है, कल के मुताबिक सारे प्लान बने हुए हैं। तो जितनी ज़रूरत है सिक्योरिटी की उसके मुताबिक बराबर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएँ। दूसरे चरण की भी उसी सतह पे हमारी तैयारी है और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी लोग बड़ी तादाद में जो हैं वो अपना हिस्सा लेंगे और हम लोग सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करेंगे। गांदरबल में पीडीपी के सरकर्दा लीडर मरहूम काजी मोहम्मद अफजल के फर्जंद काजी उमर फारूक को हामियों ने वालिद का जानशीन मुकर्रर किया। इस मौके पर रिवायती तौर पर काजी उमर फारूक की दस्तरबंदी की गई। कन्वेंशन के मौके पर पार्टी वर्करान और हामियों ने पीडीपी के लिए बिलुमूम और मरहूम मोहम्मद अफजल के लिए बिलखुसूस अपनी वफादारी का इजहार किया। इस मौके पर काजी उमर फारूक ने कहा कि वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए गांदरबल जिले के अवाम के लिए मेहनत और लगन से काम करेंगे। उधर पीडीपी ने काजी उमर फारूक को उनके वालिद के बहसियत जानशीन तस्लीम नहीं किया है और न ही पार्टी के साथ ताल्लुकात को पीडीपी कबूल करती है। हम पीडीपी के साए तले काम कर रहे हैं, महबूब जी के अंडर काम कर रहे हैं। फंक्शन इतने में ही थी तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे जो वर्करों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक पैगाम महबूब जी को भेजा है। हम पीडीपी के हैं, पीडीपी के साथ आएंगे, अपना हक इंसाफ ढूंढेंगे, अपना हक ढूंढेंगे जो इस गांदरबल का है। हमारी पार्टी है वो वसी दिल है, वसी मंजर है उनकी, वसी नजरिया है उनकी नजरिया है हीलिंग टाइप, जख्मी दिलों को मरहम करना है। ये जो आते हैं अरे गहरे नथु खैरे आते हैं पार्टियां छोड़ के हमारे पार्टी में डांगा डालने आते हैं, ये नहीं ऐसा रहेगा। हम पीडीपी है था और रहेंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के टिकट पर कदलवल पांपोर के रहने वाले ताजर जुबैर अहमद मसूदी मैदान में उतरे हैं। जुबैर का कहना है कि कश्मीर में नावसाइद हालात को देखकर उन्होंने सियासत में कदम रखा और उनकी कोशिश रहेगी कि पूरे जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सियासी पार्टियों ने लोगों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने नौजवानों से तालीम पर तवज्जो देने की अपील की। कितने सियासतदान आए यहाँ पे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाया किसी भी लेवल पे। इंशाल्लाह अब आजमाइए, आपका अगर ताउन, लोगों का अगर ताउन हो, हमें भी एक दफ़ा आजमाइए, एआईपी को एक दफ़ा आजमाइए और देखिए कि हम कितनी चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हमारा मंशूर क्लियर है। पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी यहाँ पे, हमारी पार्टी की प्रेफरेंस पीस कायम करना। जब भी यहाँ पे पीस होगा तब भी डेवलपमेंट भी होगी, हमारे जहन खुल जाएंगे। कलम पकड़ के देखो। मैं अपने नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि कलम भी बड़ी ताकत है। आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की हलाकत के बाद इंतजामिया की जानब से किश्तवाड़ में आज 5वें रोज भी कर्फ्यू का निफाज रहा। इस बीच ट्रैफिक सड़कों से बिल्कुल गायब रहा, सड़कें सुनसान नजर आईं। गुज़श्ता 5 रोज से किश्तवाड़ तहसील में इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं। इस बीच आज शाम 4 बजे के आसपास कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई। उधर मकामी लोगों की जानब से न्यूज़ 18 उर्दू को फोन कॉल्स के जरिए राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं। साथ ही उनका कहना था कि लगातार बंदिशों की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कल से किश्तवाड़ तहसील के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। इस बीच पुलिस को चिरहार किश्तवाड़ इलाके में एक नामालूम कार मिली है। कार को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। गुज़श्ता रात डोडा और रामबन अजला में इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई। इस दौरान आरएसएस लीडर और उनके पीएसओ की हलाकत के खिलाफ कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की जानिब से झांकी निकालने की इजाजत नहीं दी गई। गुज़श्ता 1.5 महीने में पाकिस्तान की जानिब से 513 मरतबा फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वाक़यात राजौरी और पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए। इनमें 100 से ज्यादा वाक़यात में पाकिस्तान ने मोर्टार जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने इस दौरान फौजी चौकियों को निशाना बनाया।
یہ تفصیلات GOC 16 کور لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے شہری علاقوں پر بھی بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی گئی جس کا فوج نے معقول جواب دیا. GOC پرمجیت سنگھ نے کہا کہ جب بھی پاکستان سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہماری فوج اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ کئی بار پاکستان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تاہم وہ اسے مخفی رکھتے ہیں. GOC نے ریاستی گورنر کے مشیر کے شرما کے ہمراہ شادی چوک مندی راجوری کے شہید جوان کو خراج عقیدت پیش کیا. پچھلے 1.5 مہینے میں 513 سیز فائر وائلیشن ہوئے. اس کے بیچ میں تقریباً 100 سے اوپر ایسا سمے تھا کہ جہاں پہ بڑے ہتھیار کا استعمال بھی ہوا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی جو ہے حال ہی میں پاکستان کی فوج نے سول ایریا پہ بھی گولہ باری کافی بار کی ہے. ہماری فوج اس کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اسی بھاشا میں. ہماری سوتروں کے حساب سے اس کی ہمارے سے 5 سے 6 گنا زیادہ کیجولٹی ہوئی ہے. دشمن کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جہاں پہ اگرواد ختم ہو چکا ہے, دہشت گردی ختم ہو چکی ہے, وہاں پہ دوبارہ اس کو شروع کیا جائے. لیکن اس کے لیے ہم لوگ پورے تیار ہیں. کشمیر ویلی میں دیکھا جائیں تو ایئر اسٹرائک کے بعد کافی تعداد میں JM کے اور لیڈرشپ کو جو ہے مارا گیا. پونچھ کے ساوجیان سیکٹر میں پاکستان نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ رات گولہ باری کی. پاکستان نے فوجی چوکیوں سمیت رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. فوج نے بھی پاکستانی گولہ باری کا معقول جواب دیا. گزشتہ رات پاکستانی گولہ باری سے 3 افراد زخمی ہو گئے اور کئی مکانوں کو نقصان پہنچا. LOC سے محض 300 میٹر کی دوری پر بسے چھابڑیاں گاؤں کے لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے. پاکستانی گولہ باری رات بھر جاری رہی. لوگوں نے ساری رات مکانوں میں جاگ کر گزارا. لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان لگاتار رہائشی بستیوں کو نشانہ بنا رہا ہے. بنکرز نہ ہونے کی وجہ سے جان اور مال کا نقصان ہو رہا ہے. لوگوں نے حکومت سے اپیل کی کہ انہیں جلد از جلد بنکرز فراہم کیے جائیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اب پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ سرحدی علاقوں کے لوگ راحت کی سانس لے سکیں. ادبی مرکز کمراز کا جنرل کونسل اجلاس آج کشمیر وومنس کالج آف ایجوکیشن سوپور میں منعقد ہوا جس کی صدارت مرکز کے صدر فاروق اور رفیع آبادی نے کی. اجلاس میں فیصلہ لیا گیا کہ ادبی مرکز کمراز قریب کشمیری زبانوں کو 9ویں اور 10ویں جماعت میں پڑھانے کے لیے سرکار سے ایک بار پھر درخواست کرے گا. وہ اپنے احکامات کو صادر فرما کر اس زبان کے تئیں اپنے فرائض انجام دے. دوسری نشست ادبی مرکز کمراز کے سابق صدر ڈاکٹر عزیز حاجنی کے اعزاز میں منعقد ہوئی. اس نشست میں صدر کی صدارت ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر GN نتو نے کی. اس موقع پر عزیز حاجنی کی خدمات کی ستائش کی گئی اور انہیں اعزاز سے نوازا گیا. مرکز کمراز ایک بہت ہی اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے لٹریری اور کلچرل زندگی کے حوالے سے, اور اس پلیٹ فارم کو پوری شدت کے ساتھ یوٹیلائز کیا جائے گا. اور ایک لسانی تحریک جو بیچ میں کسی وجہ سے تھوڑی سی دھیمی پڑ گئی تھی, اس میں ہم ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش کریں گے اور پوری ریاست میں ایک ثقافتی اور تہذیبی انقلاب برپا کریں گے. سری نگر میں آج ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر میر غلام حسن راز پامپوری کے شعری مجموعہ پھیلاون کی رسم رونمائی انجام دی گئی. تقریب کا اہتمام نگینی کلچرل فاؤنڈیشن نے کیا تھا. تقریب میں وادی کے سرکردہ ادبا, شعراء اور ثقافتی شعبے سے جڑی شخصیات نے شرکت کی. ایوان صدارت میں ہمایوں قیصر اور سعید ذیشان فاضل موجود رہے. ادیب اور براڈ کاسٹر عبدالاحد فرہاد نے کلیدی خطبہ دیا جبکہ شبنم بشیر اور رحیم رضوان نے تبصرے پیش کیے. فضل ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا اپنی ہی زندگی میں اس کتاب کو شائع ہوتے ہوئے دیکھتا. مجھے آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے خیالات جو تھے اندر ہی وہ باہر آئے, لوگوں تک میں ان کو پہنچا رہا ہوں, اور امید ہے کہ اللہ کرے کہ ہر ایک پڑھنے والے کو, ہر ایک دیکھنے والے کو اس سے خاص حوصلہ افزائی ہو جائے. ہر موضوع پر جو اظہار خیال کیا ہے, جس چیز کو نظم بنایا ہے, اس میں ایک پیغام بھی دیا ہے, اور وہ پیغام ہے محبت کا, محبتوں کا, زندگی کا, نئی امیدوں کا اور ہنسی خوشی جینے کا. اور اس پیغام دینے میں آپ بہت کامیاب ہو گئے ہیں, اور یہی پیغام ہے جو آج کے دور میں اکثر کا کام کر سکتا ہے. درگاشمی اور رام نومی کے موقع پر آج سری نگر کے درگا ناگ مندر میں ہون کیا گیا. اس موقع پر کئی لوگ موجود رہے. اس سال درگاشمی اور
रामनवमी एक साथ आई है, जिसे मुतबरक माना जाता है। आज खुसूसी प्रार्थना की गई, कश्मीर में खुशहाली और अमन के लिए दुआएं की गई। ये नवरात्रि में हम कनका पूजा करते हैं, जो मतलब हम यहाँ छोटे लड़कियों को लाते हैं, उनको पूजा करते हैं, पैर धोते हैं, कुछ खाना देते हैं, प्रसाद देते हैं। ये हम करते हैं हर साल। नवरात्रा हर साल दो बार आती हैं साल में। ये हम हर साल यहाँ 2 बार करते हैं। हमने आज भगवान से, अल्लाह ताला से, परमात्मा से यही प्रार्थना की कि हमारे कश्मीर के अमन कायम हो। यहाँ जिस तरह पहले तरक्की और खुशहाली थी वही दोबारा जन्म ले, और जिस तरह यहाँ भाई चारा था, जिस तरह यहाँ अमन था, वही दोबारा कायम हो जाए। यहाँ एक तरफ से अजान, दूसरी तरफ से मस्जिद मंदिर की घंटा, ये हमेशा चलती रहे। ये हमारी आरज़ू है और यही हम अल्लाह ताला से, परमात्मा से, बीवी से प्रार्थना करते हैं। नौरोज़ा त्यौहार नवरात्रा इख्तिताम पजीर हो गया है। उधमपुर में आज सुबह सूरज तुलू होते ही भारी तादाद में अकीदतमंद, खास तौर से खवातीन दरियाए देविका पर देखे गए। इस दौरान अकीदतमंदों ने माता दुर्गा की खुसूसी पूजा अर्चना की और मुल्क व कौम में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। म्यूनिसिपल कमेटी विरवा ने न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का नोटिस लिया है। म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा कि लापरवाही के मुर्तकिब अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़र की न्यूज़ 18 ने एक हफ्ता पहले विरवा में 4.25 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले लेन में हुई बेज़ाब्तगी की खबर नशर की थी। वार्ड नंबर 3 और 2 में लेन का ये मसला है। कल मेरे पास इस कोचे की शिकायत आई है, लेकिन मैंने उनको विश्वास दे दिया है मैं खुद आ जाऊंगा वहाँ पे काम पे। जो कोई कोताही होगी मैं वो दूर करूँगा। गुज़श्ता रात महकमा वाइल्ड लाइफ डोडा ने खेलानी ग्रिड स्टेशन इलाके में एक जिंदा तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस तेंदुए की मौजूदगी की वजह से इलाके के लोगों में खौफ पाया जा रहा था। इसने कई पालतू जानवरों पर हमला किया था। पकड़े हुए तेंदुए को बाद में किश्तवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंतकिल किया गया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।